Hello, before you get lost in the story, subscribe to the channel and turn on notifications. Thank you. Julius Caesar. Audiobooks 108. Making Shakespeare Easy and Accessible. Page 32 Act 3 Scene 8. Rome. Before the Capitol, the Senate sitting above. A crowd of people, among them Artemidorus and the soothsayer. Flourish. Enter Caesar, Brutus, Cassius, Decius, Brutus, Metellus, Cimber, Trebonius, Cinna, Antony, Lepidus, Populus, Publius, and others. Caesar, to the soothsayer, the Ides of March are come. Soothsayer I, Caesar, but not gone. Artemidorus, hail, Caesar. Read the schedule. Decius Brutus, Trebonius doth desire you to read, at your best leisure, this his humble suit. Artemidorus, O Caesar, read mine first, for mine's a suit that touches Caesar nearer. Read it, great Caesar. Caesar, what touches us ourselves shall be last served. Artemidorus, delay not. Caesar, read it instantly. Caesar, what, is the fellow mad? Publius, Sirrah, give place. Cassius, what, urge your petitions in the street. Come to the Capitol. Caesar goes up to the Senate house, the rest following Populus. I wish your enterprise today may thrive. Cassius, what enterprise? Populus. Populus, fare you well. Advances to Caesar. Brutus, what said Populus? Lena. Cassius, he wished today our enterprise might thrive. I fear our purpose is discovered. Brutus, look, how he makes to Caesar, mark him. Cassius, be sudden, for we fear prevention. Brutus, what shall be done? If this be known, Cassius or Caesar never shall turn back, for I will slay myself. Page 33 Brutus, Cassius, be constant. Populus. Lena speaks not of our purposes, for, look, he smiles, and Caesar doth not change. Cassius. Trebonius knows his time, for, look you, Brutus. He draws Mark Antony out of the way. Exeunt Antony and Trebonius. Decius Brutus, where is Metellus? Cimber? Let him go, and presently prefer his suit to Caesar. Brutus, he is addressed, press near and second him. Cinna, Cass, you are the first that rears your hand. Caesar, are we all ready? What is now amiss that Caesar and his Senate must redress? Metellus. Cimber, most high, most mighty, and most puissant Caesar. Metellus. Cimber throws before thy seat and humble heart, kneeling Caesar, I must prevent thee, Cimber. These couchings and these lowly courtesies might fire the blood of ordinary men, and turn pre-ordinance and first decree into the law of children. Be not fond to think that Caesar bears such rebel blood that will be thought from the true quality with that which melteth fools, I mean, sweet words, low-crooked courtesies and base spaniel fawning. Thy brother by decree is banished. If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No, Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. Metellus. Cimber, is there no voice more worthy than my own to sound more sweetly in great Caesar's ear for the repealing of my banished brother? Brutus, I kiss thy hand, but not in flattery. Caesar, desiring thee that Publius. Cimber may have an immediate freedom of repeal. Caesar, what? Brutus. Page -34 Cassius, pardon, Caesar, pardon, as lowest to thy foot doth Cassius fall to beg enfranchisement for Publius. Cimber. Cassius, I could be well moved, if I was here, if I could pray to move, prayers would move me, but I am constant as the northern star, of whose true fixed and resting quality there is no fellow in the firmament. The skies are painted with unnumbered sparks, they are all fire and every one doth shine, but there's but one in all doth hold his place, so in the world, 'tis furnished well with men, and men are flesh and blood, and apprehensive, yet in the number I do know but one that unassailable holds on his rank, unshaked of motion, and that I am he. Let me a little show it, even in this, that if us constant Cimber should be banished, and constant do remain to keep him so. Cinna, O Caesar, hence wilt thou lift up Olympus? Decius Brutus, great Caesar, doth not Brutus bootless kneel? Cass, speak, hands for me. Cass first, then the other conspirators, and Brutus stab Caesar. Caesar, et tu, Brute. Then fall, Caesar. Dies Cinna.
Liberty. Freedom. Tyranny is dead. Run hence, proclaim, cry it about the streets. Cassius, some to the common pulpits, and cry out liberty, freedom, and enfranchisement. Brutus, people and senators, be not affrighted, fly not, stand stiff, ambition's debt is paid. Cass, go to the pulpit, Brutus. Decius Brutus, and Cassius too. Brutus, where's Publius? Cinna, here, quite confounded with this mutiny. Page 35 Metellus Cimber, stand fast together, lest some friend of Caesar's should chance Brutus, talk not of standing. Publius, good cheer, there is no harm intended to your person, nor to no Roman else, so tell them Publius. Cassius, and leave us, Publius, lest that the people, rushing on us, should do your age some mischief. Brutus, do so, and let no man abide this deed, but we the doers. Re-enter Trebonius. Cassius, where's Antony? Trebonius, fled to his house amazed. Men, wives and children stare, cry out and run as it were doomsday. Brutus, fates, we will know your pleasures, that we shall die, we know 'tis but the time and drawing days out, that men stand upon. Cassius, why, he that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death. Brutus, grant that, and then is death a benefit, so are we Caesar's friends that have abridged his time of fearing death. Stoop, Romans, stoop, and let us bathe our hands in Caesar's blood up to the elbows, and besmear our swords, then walk we forth, even to the marketplace, and, waving our red weapons o'er our heads, let's all cry, peace, freedom and liberty. Cassius, stoop, then, and wash. How many ages hence shall thus our lofty scene be acted over in states unborn and accents yet unknown? Brutus, how many times shall Caesar bleed in sport, that now on Pompey's bases lies along no worthier than the dust? Cassius, so oft as that shall be, so often shall the knot of us be called the men that gave their country liberty. Decius Brutus, what shall we forth? Page 36 Cassius, I, every man away, Brutus shall lead, and we will grace his heels with the most boldest and best hearts of Rome. Enter a servant Brutus, soft. Who comes here? A friend of Antony's. Servant, thus, Brutus, did my master bid me kneel, thus did Mark Antony bid me fall down, and, being prostrate, thus he bade me say, Brutus is noble, wise, valiant, and honest, Caesar was mighty, bold, royal, and loving, say I love Brutus, and I honor him, say I feared Caesar, honored him and loved him. If Brutus will vouchsafe that Antony may safely come to him, and be resolved how Caesar hath deserved to lie in death, Mark Antony shall not love Caesar dead so well as Brutus living, but will follow the fortunes and affairs of noble Brutus thorough the hazards of this untrod state with all true faith. So says my master Antony. Brutus, thy master is a wise and valiant Roman, I never thought him worse. Tell him, so please him come unto this place, he shall be satisfied, and, by my honor, depart untouched. Servant, I'll fetch him presently. Exit Brutus, I know that we shall have him well to friend. Cassius, I wish we may, but yet have I a mind that fears him much, and my misgiving still falls shrewdly to the purpose. Brutus, but here comes Antony. Re-enter Antony, welcome, Mark Antony. Page -37 Antony, O mighty Caesar, dost thou lie so low? Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils, shrunk to this little measure? Fare thee well. I know not, gentlemen, what you intend, who else must be let blood, who else is rank, if I myself, there is no hour so fit as Caesar's death hour, nor no instrument of half that worth as those your swords, made rich with the most noble blood of all this world. I do beseech ye, if you bear me hard, now, whilst your purpled hands do reek and smoke, fulfill your pleasure. Live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die. No place will please me so, no mean of death, as here by Caesar, and by your cut off, the choice and master spirits of this age. Brutus, O Antony, beg not your death of us. Though now we must appear bloody and cruel, as, by our hands in this our present act, you see we do, yet see you but our hands and thus the bleeding business they have done.
Our hearts you see not, they are pitiful, and pity to the general wrong of Rome as fire drives out fire, so pity hath done this deed on Caesar. For your part, to you our swords have leaden points, Mark Antony, our arms, in strength of malice, and our hearts of brothers' temper, do receive you in with all kind love, good thoughts, and reverence. Cassius, your voice shall be as strong as any man's in the disposing of new dignities. Brutus, only be patient till we have appeased the multitude, beside themselves with fear, and then we will deliver you the cause, why I, that did love Caesar when I struck him, have thus proceeded. Antony, I doubt not of your wisdom. Let each man render me his bloody hand. First, Marcus Brutus, will I shake with you. Next, Caius Cassius, do I take your hand. Now, Decius Brutus, yours. Now yours, Metellus, yours, Cinna, and, my valiant Cass, yours, though last, not last in love, yours, good Trebonius. Gentlemen all, alas, what shall I say? My credit now stands on such slippery ground, that one of two bad ways you must conceit me, either a coward or a flatterer. That I did love thee, Caesar, oh, 'tis true, if then thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death, to see thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy foes, most noble, in the presence of thy cause. Page. Arthes, had I as many eyes as thou hast wounds, weeping as fast as they stream forth thy blood, it would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. Pardon me, Julius. Here wast thou bade, brave heart, here didst thou fall, and here thy hunters stand, signed in thy spoil, and crimsoned in thy lethe. O world, thou wast the forest to this heart, and this, indeed, O world, the heart of thee. How like a deer, strucken by many princes, dost thou here lie. Cassius, Mark Antony, pardon me, Caius Cassius, the enemies of Caesar shall say this, then, in a friend, it is cold modesty. Cassius, I blame you not for praising Caesar so, but what compact mean you to have with us? Will you be pricked in number of our friends, or shall we on, and not depend on you? Antony, therefore I took your hands, but was, indeed, swayed from the point, by looking down on Caesar. Friends, am I with you all and love you all, upon this hope that you shall give me reasons why and wherein Caesar was dangerous. Brutus, or else with this a savage spectacle. Our reasons are so full of good regard that were you, Antony, the son of Caesar, you should be satisfied. Antony, that's all I seek, and am moreover suitor that I may produce his body to the marketplace, and in the pulpit, as becomes a friend, speak in the order of his funeral. Brutus, you shall, Mark Antony. Cassius, Brutus, a word with you. Aside, to Brutus, you know not what you do. Do not consent that Antony speak in his funeral. Know you how much the people may be moved by that which he will utter. Page. Untalis Brutus, by your pardon, I will myself into the pulpit first, and show the reason of our Caesar's death. What Antony shall speak, I will protest he speaks by leave and by permission, and that we are contented Caesar shall have all true rights and lawful ceremonies. It shall advantage more than do us wrong. Cassius, I know not what may fall, I like it not. Brutus, Mark Antony, here, take your Caesar's body. You shall not in your funeral speech blame us, but speak all good you can devise of Caesar, and say you do it by our permission, else shall you not have any hand at all about his funeral, and you shall speak in the same pulpit whereto I am going, after my speech is ended. Antony, be it so. I do desire no more. Brutus, prepare the body then, and follow us. Exeunt all but Antony, oh, pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers. Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times. Woe to the hand that shed this costly blood. Over thy wounds now do I prophesy, which, like dumb mouths, do ope their ruby lips, to beg the voice and utterance of my tongue acres shall light upon the limbs of men, domestic fury and fierce civil strife shall cumber all the parts of Italy, blood and destruction shall be so in use and dreadful objects so familiar that mothers shall but smile when they behold their infants squatted with the hands of war, all pity choked with custom of fell deeds,
and Caesar's spirit, ranging for revenge, with aid by his side come hot from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry, havoc, and let slip the dogs of war, that this foul deed shall smell above the earth with carrion men, groaning for burial. Enter a servant, you serve Octavius Caesar, do you not? Page, Charlie's servant, I do, Mark Antony. Antony, Caesar did write for him to come to Rome. Servant, he did receive his letters, and is coming, and bid me say to you by word of mouth, O Caesar, seeing the body Antony, thy heart is big, get thee apart and weep. Passion, I see, is catching, for mine eyes, seeing those beads of sorrow stand in thine, began to water. Is thy master coming? Servant, he lies tonight within 7 leagues of Rome. Antony, post back with speed, and tell him what hath chanced. Here is a morning Rome, a dangerous Rome, no Rome of safety for Octavius yet, he hence, and tell him so. Yet, stay a while, thou shalt not back till I have borne this cause into the marketplace, there shall I try in my oration, how the people take the cruel issue of these bloody men, according to the which, thou shalt discourse to young Octavius of the state of things. Lend me your hand. Exeunt with Caesar's body seen, to the forum. Enter Brutus and Cassius, and a throng of citizens, we will be satisfied, let us be satisfied. Brutus, then follow me, and give me audience, friends. Cassius, go you into the other street, and part the numbers. Those that will hear me speak, let them stay here. Those that will follow Cassius, go with him, and public reasons shall be rendered of Caesar's death. First citizen, I will hear Brutus speak. Second citizen, I will hear Cassius, and compare their reasons, when severally we hear them rendered. Exit Cassius, with some of the citizens. Brutus goes into the pulpit. Third citizen, the noble Brutus is ascended. Silence. Page, Ictalis Brutus, be patient till the last. Romans, countrymen, and lovers. Hear me for my cause, and be silent, that you may hear. Believe me for mine honor, and have respect to mine honor, that you may believe. Censure me in your wisdom, and awake your senses, that you may the better judge. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say, that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Had you rather Caesar were living and die all slaves, than that Caesar were dead, to live all free men? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But, as he was ambitious, I slew him. There is tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. Who is here so base that would be a bondman? If any, speak, for him have I offended. Who is here so rude that would not be a Roman? If any, speak, for him have I offended. Who is here so vile that will not love his country? If any, speak, for him have I offended. I pause for a reply. All none. Brutus, none. Brutus, then none have I offended. I have done no more to Caesar than you shall do to Brutus. The question of his death is enrolled in the Capitol, his glory not extenuated, wherein he was worthy, nor his offences enforced, for which he suffered death. Enter Antony and others, with Caesar's body. Here comes his body, mourned by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the commonwealth, as which of you shall not. With this I depart, that, as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself, when it shall please my country to need my death. All live. Brutus. Live, live. First citizen, bring him with triumph home unto his house. Second citizen, give him a statue with his ancestors. Third citizen, let him be Caesar. Page 42. Fourth citizen, Caesar's better parts shall be crowned in Brutus. First citizen, we'll bring him to his house with shouts and clamors. Brutus, my countryman. Second citizen, peace, silence. Brutus speaks. First citizen, peace ho.
Brutus, good countryman, let me depart alone, and, for my sake, stay here with Antony, do grace to Caesar's corpse, and grace his speech tending to Caesar's glories, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. I do entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony have spoke. Exit first citizen, stay ho. And let us hear Mark Antony. Third citizen, let him go up into the public chair, we'll hear him. Noble Antony, go up. Antony, for Brutus' sake, I am beholding to you. Goes into the pulpit. Fourth citizen, what does he say of Brutus? Third citizen, he says, for Brutus' sake, he finds himself beholding to us all. Fourth citizen, 'twere best he speak no harm of Brutus here. First citizen, this Caesar was a tyrant. Third citizen, nay, that's certain, we are blessed that Rome is rid of him. Second citizen, peace. Let us hear what Antony can say. Antony, you gentle Romans, citizens, peace ho. Let us hear him. Page 43. Antony, friends, Romans, countrymen, lend me your ears, I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar hath wept, ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and, sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment! Thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. First citizen, methinks there is much reason in his sayings. Second citizen, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. Third citizen, has he, masters? I fear there will a worse come in his place. Fourth citizen, mark ye his words. He would not take the crown, therefore, 'tis certain he was not ambitious. First citizen, if it be found so, some will dare abide it. Second citizen, poor soul. His eyes are red as fire with weeping. Third citizen, there's not a nobler man in Rome than Antony. Page 44. Fourth citizen, now mark him, he begins again to speak. Antony, but yesterday the word of Caesar might have stood against the world, now lies he there. And none so poor to do him reverence. O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong, and Cassius wrong, who, you all know, are honorable men. I will not do them wrong, I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you, than I will wrong such honorable men. But here's a parchment with the seal of Caesar, I found it in his closet, 'tis his will. Let but the commons hear this testament, which, pardon me, I do not mean to read, and they would go and kiss dead Caesar's wounds and dip their napkins in his sacred blood, yet, beg a hair of him for memory, and, dying, mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy unto their issue. Fourth citizen, we'll hear the will. Read it, Mark Antony. All the will, the will. We will hear Caesar's will. Antony, have patience, gentle friends, I must not read it, it is not meet you know how Caesar loved you. You are not wood, you are not stones but men, and, being men, bearing the will of Caesar, it will inflame you, it will make you mad. 'Tis good you know not that you are his heirs, for, if you should, oh, what would come of it? Fourth citizen, read the will, we'll hear it. Antony, you shall read us the will, Caesar's will.
Antony, will you be patient? Will you stay a while? I have overshot myself to tell you of it. I fear I wrong the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. Fourth citizen, they were traitors, honorable men. All the will, the testament. Second citizen, they were villains, murderers, the will. Read the will. Page 45. Antony, you will compel me, then, to read the will. Then make a ring about the corpse of Caesar, and let me show you him that made the will. Shall I descend? And will you give me leave? Several citizens, come down. Second citizen, descend. Third citizen, you shall have leave. Antony comes down. Fourth citizen, a ring, stand round. First citizen, stand from the hearse, stand from the body. Second citizen, room for Antony, most noble Antony. Antony, nay, press not so upon me, stand far off. Several citizens, stand back, room, bear back. Antony, if you have tears, prepare to shed them now. You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put it on. 'Twas on a summer's evening, in his tent. That day he overcame the nervy. Look, in this place ran Cassius' dagger through. See what a rent the envious Cass made. Through thus the well-beloved Brutus stabbed, and as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it, as rushing out of doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked, or no, for Brutus, as you know, was Caesar's angel. Judge, O your gods, how dearly Caesar loved him. This was the most unkindest cut of all, for when the noble Caesar saw him stab, ingratitude, more strong than traitors' arms, quite vanquished him, then burst his mighty heart, and, in his mantle muffling up his face, even at the base of Pompey's stature, which all the while ran blood, great Caesar fell. Oh, what a fall was there, my countrymen! Then I, and you, and all of us fell down, whilst bloody treason flourished over us. Oh, now you weep, and I perceive, you feel the dint of pity, these are gracious drops. Kind souls, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded? Look you here, here is himself, marred, as you see, with traitors. Page 46. First citizen, O piteous spectacle. Second citizen, O noble Caesar. Third citizen, O woeful day. Fourth citizen, O traitors, villains. First citizen, O most bloody sight. Second citizen, we will be revenged. Or revenge. About. Seek. Burn. Fire. Kill. Slay. Let not a traitor live. Antony, stay, countrymen. First citizen, peace there. Hear the noble Antony. Second citizen, we'll hear him, we'll follow him, we'll die with him. Antony, good friends, sweet friends, let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny. They that have done this deed are honorable. What private griefs they have, alas, I know not, that made them do it. They are wise and honorable, and will, no doubt, with reasons answer you. I come not, friends, to steal away your hearts. I am no orator, as Brutus is, but, as you know me all, a plain blunt man, that love my friend, and that they know full well that gave me public leave to speak of him. For I have neither wit, nor words, nor worth, action, nor utterance, nor the power of speech, to stir men's blood. I only speak right on. I tell you that which you yourselves do know. Show you sweet Caesar's wounds, poor dumb mouths, and bid them speak for me. But were I Brutus, and Brutus Antony, there when Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny. All will mutiny. First citizen, we'll burn the house of Brutus. Third citizen, away, then. Come, seek the conspirators. Page 47. Antony, yet hear me, countrymen, yet hear me speak. All peace, ho. Hear Antony. Most noble Antony. Antony, why, friends, you go to do you know not what. Wherein hath Caesar thus deserved your loves? Alas, you know not, I must tell you then. You have forgot the will I told you of. Almost true. The will. Let's stay and hear the will. Antony, here's the will, and under Caesar's seal. To every Roman citizen he gives, to every several man, 75 drachmas. Second citizen, most noble Caesar. We'll revenge his death. Third citizen, O royal Caesar. Antony, hear me with patience.
all peace, ho. Antony, moreover, he hath left you all his walks, his private arbors and new planted orchards, on the side Tiber, he hath left them you, and to your heirs forever, common pleasures to walk abroad, and recreate yourselves. Here was a Caesar. When comes such another? First citizen, never, never. Come, away, away. We'll burn his body in the holy place, and with the brands fire the traitors, houses. Take up the body. Second citizen, go fetch fire. Third citizen, pluck down benches. Fourth citizen, pluck down forms, windows, anything. Exeunt citizens with the body. Antony, now let it work. Mischief, thou art afoot, take thou what course thou wilt. Enter a servant. How now, fellow? Servant, sir, Octavius is already come to Rome. Antony, where is he? Page 48. Servant, he and Lepidus are at Caesar's house. Antony, and thither will I. Straight to visit him, he comes upon a wish. Fortune is merry, and in this mood will give us anything. Servant, I heard him say, Brutus and Cassius are rid like madmen through the gates of Rome. Antony, belike they had some notice of the people, how I had moved them. Bring me to Octavius. Exeunt scene, 3A Street. Enter Cinna the poet. Cinna the poet. I dreamt tonight that I did feast with Caesar, and things unlucky charge my fantasy. I have no will to wander forth of doors, yet something leads me forth. Enter citizens. First citizen, what is your name? Second citizen, whither are you going? Third citizen, where do you dwell? Fourth citizen, are you a married man or a bachelor? Second citizen, answer every man directly. First citizen, I, and briefly. Fourth citizen, I, and wisely. Third citizen, I, and truly, you were best. Cinna the poet, what is my name? Whither am I going? Where do I dwell? Am I a married man or a bachelor? Then, to answer every man directly and briefly, wisely and truly, wisely I say, I am a bachelor. Second citizen, that's as much as to say, they are fools that marry, you'll bear me a bang for that, I fear. Proceed, directly. Cinna the poet, directly, I am going to Caesar's funeral. Page 49. First citizen, as a friend or an enemy? Cinna the poet, as a friend. Second citizen, that matter is answered directly. Fourth citizen, for your dwelling, briefly. Cinna the poet, briefly, I dwell by the Capitol. Third citizen, your name, sir, truly. Cinna the poet, truly, my name is Cinna. First citizen, tear him to pieces, he's a conspirator. Cinna the poet, I am Cinna the poet, I am Cinna the poet. Fourth citizen, tear him for his bad verses, tear him for his bad verses. Cinna the poet, I am not Cinna the conspirator. Fourth citizen, it is no matter, his name's Cinna, pluck but his name out of his heart, and turn him going. Third citizen, tear him. Come, brands ho. Fire brands, to Brutus, to Cassius, burn all, some to Decius, house, and some to Cassius, some to Ligarius, away, go. Exeunt. For more updates like this, please subscribe our channel Audiobooks 108 and enable notifications. Thanks. नमस्कार। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद। जूलियस सीजर ऑडियो बुक्स 108 शेक्सपियर को आसान और सुलभ बनाना। पेज -32 अधिनियम -3 दृश्य 1। रोम कैपिटल से पहले सीनेट ऊपर बैठी है। लोगों की भीड़, उनमें से आर्टेमिडोरस है और भविष्यवक्ता। फलना फूलना, प्रवेश करना सीजर, ब्रूट्स, कैसियस, कैस्का, डेसियस, ब्रूट्स, मेटिलस, सिम्बर, ट्रेबोनियस, सिन्ना, एंटनी, लेपिड्स, पोपिलियस, पब्लियस और दूसरे सीजर भविष्यवक्ता के लिए मार्च के विचार आ गए हैं। भविष्यवक्ता आए, सीजर लेकिन गया नहीं। आर्टेमिडोरस, जय हो सीजर। इस शेड्यूल को पढ़ें। डेसियस, ब्रूट्स, ट्रेबोनियस चाहता है कि तुम पढ़ो, आपके सबसे अच्छे फुर्सत में। यह उनका विनम्र सूट है। आर्टेमिडोरस, हे सीजर, पहले मेरा पढ़ो, मेरे लिए एक सूट है। ये सीजर को करीब से छूता है। इसे पढ़ें, महान सीजर। सीजर,
जो चीज हमें स्वयं छूती है वही अंतिम रूप से परोसी जाएगी। आर्टेमिडोरस, देरी मत करो सीजर, इसे तुरंत पढ़ें। सीजर, क्या बंदा पागल है? पब्लियस, सर राह जगह दो। कैसियस, क्या आप सड़क पर अपनी याचिकाओं का आग्रह करते हैं? कैपिटल में आओ। सीजर सीनेट हाउस तक जाता है, बाकी लोग पीछे आते हैं। पोपिलियस, मैं कामना करता हूँ कि आज आपका उद्यम फले फूले। कैसियस, कौन सा उद्यम? पोपिलियस। पोपिलियस, विदाई। सीजर के लिए अग्रिम ब्रूट्स। पोपिलियस, लीना ने क्या कहा? कैसियस, वह चाहते थे कि आज हमारा उद्यम फले फूले। मुझे डर है कि हमारा उद्देश्य पता चल गया है। ब्रूट्स, देखो वह कैसर से कैसा व्यवहार करता है, उसे चिन्हित करें। कैसियस, कास्का, अचानक हो, क्योंकि हम रोकथाम से डरते हैं। ब्रूट्स, क्या किया जाएगा? यदि यह ज्ञात हो, कैसियस या सीजर कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को मार डालूंगा। पेज -33। ब्रूट्स, कैसियस, स्थिर रहो। पोपिलियस, लीना हमारे उद्देश्यों के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि देखो वह मुस्कुराता है और सीजर नहीं बदलता है। कैसियस, ट्रेबोनियस अपना समय जानता है, क्योंकि तुम देखो ब्रूट्स, वह मार्क एंटनी को रास्ते से हटा देता है। एक्सिएंट एंटनी और ट्रेबोनियस डेसियस। ब्रूट्स, मेटिलस सिम्बर कहाँ है? उसको छोड़ दो। और वर्तमान में सीजर के बजाय उसके सूट को प्राथमिकता देते हैं। ब्रूट्स, उसे संबोधित किया गया है, उसके पास दबाएं और उसके पीछे जाएं। सिन्ना, कास्का, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपना हाथ उठाया। सीजर, क्या हम सब तैयार हैं? अब क्या गड़बड़ है? सीजर और उसकी सीनेट को इसका समाधान करना होगा। मेटिलस सिम्बर, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली सीजर। मेटिलस सिम्बर आपकी सीट के सामने फेंकता है एक विनम्र हृदय, घुटना टेककर। सीजर, मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। सिम्बर, ये सोफेंग और ये नीच शिष्टाचार आम आदमी के खून में आग लग सकती है, और पूर्व अध्यादेश और प्रथम डिक्री को पलटे बच्चों के कानून में। शौकीन मत बनो ये सोचने के लिए कि सीजर ऐसे विद्रोही खून को सहन करता है। वह वास्तविक गुणवत्ता से पिघलाया जाएगा, उससे जो मूर्खों को पिघला देता है। मेरा मतलब है मीठे शब्द, कम टेढ़ी मेढ़ी अदालतें और बेस पेनियल फॉविंग। आपके भाई को डिक्री द्वारा निर्वासित कर दिया गया है। यदि तू झुककर प्रार्थना करे और उसके लिथे स्नेह करे, मैं तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने वाले की तरह ठुकराता हूँ। जानो, सीजर गलती नहीं करता, न कारण क्या वह संतुष्ट होगा। मेटिलस सिम्बर, क्या मेरी आवाज से ज्यादा योग्य कोई आवाज नहीं है? महान सीजर के कान में और अधिक मधुर ध्वनि करने के लिए, मेरे निर्वासित भाई को निरस्त करने के लिए। ब्रूट्स, मैं तेरा हाथ चूमता हूँ, परंतु चापलूसी में नहीं। सीजर, मैं चाहता हूँ कि पब्लियस सिम्बर ऐसा कर सके। निरसन की तत्काल स्वतंत्रता है। सीजर, क्या? ब्रूट्स, पृष्ठ -34। कैसियस, क्षमा करें। सीजर, सीजर, क्षमा करें। कैसियस, आपके पैर जितना नीचे गिरेगा, पब्लियस सिम्बर के लिए मताधिकार की भीख मांगना। कैसियस, यदि मैं भी आपकी तरह होता तो मैं बहुत प्रभावित हो सकता था। यदि मैं आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर सकता, तो प्रार्थनाएं मुझे प्रेरित करती, लेकिन मैं उत्तरी तारे की तरह स्थिर हूँ, जिसका सत्य निश्चय एवं विश्राम गुण है। आकाश में कोई साथी नहीं है। आसमान अनगिनत चिंगारियों से रंगा हुआ है, वे सभी आग हैं और हर कोई चमकता है, लेकिन उनमें से एक ही है जो अपनी जगह बनाए रखता है। तो संसार में ये पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, और मनुष्य मांस और रक्त हैं और आशंकित। फिर भी मैं संख्या में केवल एक को जानता हूँ, वह अजय अपने पद पर कायम है, गति से अविचल, और वह मैं ही हूँ। मुझे इसे थोड़ा सा दिखाने दो, इसमें भी कि मैं लगातार था। सिम्बर को निर्वासित किया जाना चाहिए, और उसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सिन्ना, हे सीजर, सीजर, इस तरह क्या तू ओलंप को उठाएगा? डेसियस, ब्रूट्स, महान सीजर, सीजर, क्या ब्रूट्स बूटलेस घुटने नहीं टेक रहा है? कास्का, बोलो, मेरे लिए हाथ। पहले कास्का, फिर अन्य षड्यंत्रकारियों, और ब्रूटूर ने सीजर को चाकू मारा। सीजर, 8-2 ब्रूट, फिर गिरो। सीजर, मर जाता है। सिन्ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अत्याचारी मर चुका है।
इसलिए भागो, प्रचार करो, सड़कों पर इसका रोना रो। कैसियस, कुछ हम मंच पर आते हैं और चिल्लाते हैं स्वतंत्रता, आजादी और मताधिकार। ब्रूट्स, लोग और सेनेटर, भयभीत न हो, उड़ो नहीं, दृढ़ रहो, महत्वाकांक्षा का कर्ज चुकाया गया है। कास्का, पुलपिट पर जाओ, ब्रूट्स। डेसियस ब्रूट्स और कैसियस भी। ब्रूट्स, पब्लियस कहाँ है? सिन्ना, इधर, इस विद्रोह से काफी भ्रमित हैं। पेज -35 मेटिलस सिम्बर, एक साथ स्थिर रहो, ऐसा न हो कि सीजर का कोई मित्र हो, मौका देना चाहिए। ब्रूट्स, खड़े होने की नहीं बात करें। पब्लियस, अच्छा उत्साह, आपके व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, नहीं किसी रोमन को, तो उन्हें बताओ। पब्लियस। कैसियस, और हे पब्लियस, हमें छोड़ दे, ऐसा न हो कि लोग हम पर झपटकर तुम्हारी उम्र को कुछ शरारत करनी चाहिए। ब्रूट्स, ऐसा ही करो, और कोई भी मनुष्य इस काम का पालन न करे, लेकिन हम करता धरता हैं। ट्रेबोनियस को पुनः दर्ज करें। कैसियस, एंटनी कहाँ है? ट्रेबोनियस, चकित होकर अपने घर भाग गया। पुरुष, पत्नियां और बच्चे घूरते हैं, चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं मानो प्रलय का दिन हो। ब्रूट्स, भाग्य, हम आपके सुखों को जानेंगे कि हम मर जाएंगे, हम जानते हैं ये, लेकिन समय है और दिन निकाल रहे हैं जिन पर मनुष्य खड़े हैं। कैसियस, क्यों? वह जो जीवन के 20 वर्ष काट देता है, मौत से डरने के इतने साल कट जाते हैं। ब्रूट्स, वह प्रदान करें, और फिर मृत्यु एक लाभ है, तो क्या हम सीजर के दोस्त हैं जिन्होंने संक्षिप्त कर दिया है मृत्यु से डरने का उसका समय? झुकना, रोमन, रुकना, और आइए हम सीजर के खून में अपने हाथ धो लें कोहनियों तक, और हमारी तलवारों को नष्ट कर दो। फिर हम चलेंगे बाजार की ओर भी, और हमारे सिर पर हमारे लाल हथियार लहराते हुए आइए हम सब चिल्लाएं, शांति, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। कैसियस, फिर झुके और धो लें। अब से कितने युग हो गए, क्या हमारे इस ऊंचे दृश्य पर अभिनय किया जाएगा? राज्यों में अजन्मा और उच्चारण अभी तक अज्ञात। ब्रूट्स, खेल में सीजर का कितनी बार खून बहेगा, वह पोम्पी के आधार पर है, धूल से बढ़कर कोई नहीं। कैसियस, ऐसा अक्सर होगा, इतनी बार हम में से गांठ को बुलाया जाएगा, वे लोग जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाई। डेसियस ब्रूट्स, हम क्या करें? पेज -36 कैसियस, आए, हर आदमी दूर, ब्रूट्स नेतृत्व करेगा, और हम उसकी शोभा बढ़ाएंगे रोम के सबसे साहसी और बेहतरीन दिलों के साथ। एक नौकर दर्ज करे ब्रूट्स, कोमल, यहाँ कौन आता है? एंटनी का एक दोस्त। नौकर, इस प्रकार, ब्रूट्स, क्या मेरे स्वामी ने मुझे घुटने टेकने के लिए कहा? इस प्रकार मार्क एंटनी ने मुझे नीचे गिरा दिया, और साष्टांग होकर इस प्रकार उसने मुझसे कहा। ब्रूट्स ने एक बुद्धिमान, बहादुर और ईमानदार है। सीजर शक्तिशाली, साहसी, शाही और प्यार करने वाला था। कहो कि मैं ब्रूट्स से प्रेम करता हूँ और उसका आदर करता हूँ। कहो कि मैं सीजर से डरता था, उसका सम्मान करता था और उससे प्यार करता था। यदि ब्रूट्स एंटनी की गारंटी लेकर सुरक्षित रूप से उसके पास आ सकते हैं, और समाधान हो सकता है सीजर कैसे मौत का हकदार था। मार्क एंटनी सीजर को मरा हुआ पसंद नहीं करेंगे। ब्रूट्स का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन पालन करेंगे कुलीन ब्रूट्स की किस्मत और मामले इस अनियंत्रित अवस्था के खतरों के बारे में पूरी जानकारी, पूरी सच्ची आस्था के साथ। ऐसा मेरे गुरु एंटनी कहते हैं। ब्रूट्स, तेरा स्वामी बुद्धिमान और वीर रोमी है, मैंने कभी उससे बुरा नहीं सोचा। उससे कहो तो कृपया वह इस स्थान पर आए, वो संतुष्ट होगा, और मेरे सम्मान से अछूता प्रस्थान करें। नौकर, मैं उसे अभी ले आता हूँ। बाहर निकलना ब्रूट्स, मैं जानता हूँ कि हम उससे अच्छी दोस्ती करेंगे। कैसियस, काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन फिर भी मेरे पास एक दिमाग है, वह उससे बहुत डरता है, और मेरे अभी भी गलतफहमी है, उद्देश्य के प्रति चतुराई से गिर जाता है। ब्रूट्स, लेकिन यहाँ एंटनी आते हैं। एंटनी को फिर से दर्ज करें, आपका स्वागत है, मार्क एंटनी। पृष्ठ -37 एंटनी, हे पराक्रमी सीजर, क्या तुम इतना नीचे झूठ बोलते हो? क्या आपकी सभी विजय, गौरव, विजय, लूट इस छोटे से माप तक सिकुड़ गए? अच्छी तरह से मुकाबला करना। मैं नहीं जानता सज्जनों, आपका इरादा क्या है, और किसे खून देना चाहिए, और कौन रैंक है? यदि मैं स्वयं,
तो कोई भी घंटा इतना उपयुक्त नहीं है सीजर की मौत की घड़ी के रूप में, और न ही कोई साधन आपकी तलवारों की कीमत के आधे से भी अधिक अमीर बना दिया गया इस पूरी दुनिया में सबसे महान रक्त के साथ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, यदि तुम मुझे कठोरता से सहन करो, अब जबकि आपके बैंगनी हाथ दुर्गंध और धुआं बना रहे हैं, अपनी खुशी पूरी करो। 1000 साल जियो, मैं अपने आप को मरने के लिए इतना उपयुक्त नहीं पाऊंगा। कोई भी जगह मुझे खुश नहीं करेगी, इसलिए मौत का कोई साधन नहीं, जैसा कि यहाँ सीजर द्वारा और आपके द्वारा काट दिया गया। इस युग की पसंद और गुरु आत्माएं। ब्रूट्स, हे एंटनी, हमसे मौत की भीख मत मांगो। हालांकि अब हमें खूनी और क्रूर दिखना होगा, जैसे हमारे हाथों से, और यह हमारा वर्तमान कार्य है। आप देखते हैं, हम देखते हैं, फिर भी आप देखते हैं, लेकिन हमारे हाथ और यह खून खराबे वाला कारोबार उन्होंने किया है। हमारे दिल तुम नहीं देखते, वे दयनीय हैं, और रोम की सामान्य गलती पर दया आती है। जैसे आग आग को बुझा देती है, वैसे ही दया करो। सीजर पर यह काम किया है। आपके हिस्से के लिए, आपके लिए हमारी तलवारों में नेतृत्व बिंदु हैं, मार्क एंटनी। हमारी भुजाएं द्वेष की ताकत में, और हमारे दिल में भाइयों के स्वभाव के बारे में तुम्हें अंदर ले आओ, सभी प्रकार के प्रेम, अच्छे विचारों और श्रद्धा के साथ। कैसियस, आपकी आवाज किसी भी आदमी जितनी मजबूत होगी नई गरिमाओं के निपटान में। ब्रूट्स, केवल तब तक धैर्य रखें जब तक हम शांत न हो जाएं। भीड़, डर के मारे अपने आप से दूर, और फिर हम आपको कारण बताएंगे मैं क्यों वह सीजर से प्यार करता था जब मैंने उसे मारा था। इस प्रकार आगे बढ़े हैं। एंटनी, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है। प्रत्येक मनुष्य मुझे अपना रक्तरंजित हाथ सौंप दे। सबसे पहले मार्कस ब्रूट्स, क्या मैं तुम्हारे साथ काम पूंगा? अगला कैस कैसियस, क्या मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ? अब डेसियस ब्रूट्स, तुम्हारा, अब तुम्हारा, मेटिलस, तुम्हारा, सिन्ना, और मेरी बहादुर कास्का, तुम्हारी, हालांकि प्यार में आखिरी नहीं, तुम्हारा। अच्छा ट्रेबोनियस। सभी सज्जनों, अफसोस मैं क्या कहूँ, मेरी साख अब ऐसी फिसलन भरी जमीन पर खड़ी है। वह तो बुरे तरीकों में से एक है जो तुम्हें मुझ पर गर्व करना चाहिए, या तो काया या चापलूस, कि मैं तुमसे प्यार करता था। सीजर, हे, ये सच है। यदि तब तेरा आत्मा अब हम पर दृष्टि करे, क्या ये तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से भी अधिक प्रिय नहीं होगा? अपने एंथनी को शांति बनाते हुए देखने के लिए, अपने शत्रुओं की खूनी उंगलियां हिलाते हुए, परम श्रेष्ठ, तेरे शव की उपस्थिति में। पेज -38। काश मेरे पास भी उतनी ही आंखें होती जितनी तेरे पास घाव हैं, उतनी ही तेजी से रो जितनी तेजी से तुम्हारा खून बह रहा हो। यह मेरे लिए बंद करने से बेहतर होगा अपने दुश्मनों से दोस्ती के मामले में। मुझे क्षमा करें जूलियस, तुम यहाँ थे, बहादुर हॉट, यहाँ तुम गिरे थे, और यहाँ तुम्हारे शिकारी खड़े हैं। अपनी लूट में हस्ताक्षर करो और अपने लेख में लाल रंग का चिन्ह लगाओ। हे विश्व, तू इस हिरण के लिए जंगल था, और ये वास्तव में, हे संसार, तुम्हारा हृदय है। कैसे एक हिरण की तरह कई राजकुमारों द्वारा मारा गया, क्या तुम यहाँ झूठ बोलते हो? कैसियस, मार्क एंटनी, मुझे क्षमा करें। कैस कैसियस, कैसर के शत्रु ये कहेंगे, फिर एक दोस्त में ये ठंडी विनम्रता है। कैसियस, सीजर की इतनी प्रशंसा करने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन हमारे साथ आपका क्या समझौता है? क्या आप हमारे दोस्तों की संख्या में चुभेंगे, या क्या हम आप पर निर्भर नहीं रहेंगे? एंटनी, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया, परंतु वास्तव में, सीजर को नीचे देखते हुए, बिंदु से हट गया। दोस्तों, क्या मैं आप सभी के साथ हूँ और आप सभी से प्यार करता हूँ, इस आशा पर कि तुम मुझे कारण बताओगे सीजर क्यों और कहाँ खतरनाक था। ब्रूट्स, या फिर यह एक क्रूर तमाशा था? हमारे कारण बहुत अच्छे सम्मान से भरे हुए हैं, वो तुम थे। एंटनी, सीजर का बेटा, आपको संतुष्ट होना चाहिए। एंटनी, मैं बस यही चाहता हूँ, और मैं इसके प्रति अधिक इच्छुक हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। उसके शरीर को बाजार में पेश करो, और मैनमंच मित्र बन जाता है। उनके अंतिम संस्कार के क्रम में बोलें। ब्रूट्स, आप ऐसा करेंगे? मार्क एंटनी। कैसियस, ब्रूट्स, आपसे एक बात, ब्रूट्स के अलावा आप नहीं जानते कि आप क्या करते हैं। सहमति न दे वह। एंटनी अपने अंतिम संस्कार में बोले,
आप जानते हैं कि लोग कितने प्रभावित हो सकते हैं जिससे वह बोलेगा। पेज -39 ब्रूट्स, आपकी क्षमा से मैं स्वयं सबसे पहले मंच पर आऊंगा और हमारे सीजर की मृत्यु का कारण बताओ। एंटनी जो बोलेंगे मैं विरोध करूंगा, वह अनुमति से और अनुमति से बोलता है और सीजर हमें संतुष्ट करेगा। सभी सच्चे संस्कार और वैध समारोह करें, इससे हमें नुकसान होने की बजाय फायदा ही अधिक होगा। कैसियस, मैं नहीं जानता कि क्या गिर सकता है, मुझे ये पसंद नहीं है। ब्रूट्स, मार्क एंटनी, यहाँ आप सीजर का शव ले जाएं। आप अपने अंतिम संस्कार भाषण में हमें दोष नहीं देंगे, परंतु सीजर के विषय में जो कुछ भी अच्छा सोच सकते हो बोलो, और कहते हैं कि आप हमारी अनुमति से ऐसा नहीं करते, नहीं तो तुम्हारा कोई हाथ ही न बचेगा उनके अंतिम संस्कार के बारे में, और आप बोलेंगे उसी मंच पर जहां मैं जा रहा हूं, मेरा भाषण खत्म होने के बाद। एंटनी, ऐसा हो इसलिए मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। ब्रूट्स, फिर शरीर तैयार करें और हमारा अनुसरण करें। एंटनी को छोड़कर सभी को छोड़ दो। एंटनी, हे, मुझे क्षमा करो, तुम धरती के टुकड़े का खून बहा रहे हो कि मैं इन कसाईयों के साथ नम्र और नम्र हूँ। आप श्रेष्ठतम व्यक्ति के खंडहर हैं, वह कभी समय के ज्वार में रहता था। धिक्कार है उस हाथ पर जिसने इतना महंगा खून बहाया। तेरे घावों पर अब मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो गूंगे मुंह की तरह अपने लाल होंठ खोलते हैं। मेरी जुबान की आवाज और उच्चारण की भीख मांगने के लिए मनुष्यों के अंगों पर शाप का प्रकाश पड़ेगा। घरेलू रोष और भयंकर गृहकलह इटली के सभी भागों पर कब्जा कर लेगा। खून और विनाश का इतना उपयोग होगा और भयानक वस्तुएं बहुत परिचित हैं। जब वे देखेंगे तो माताएं मुस्कुराएंगी। उनके शिशु युद्ध के हाथों मारे गए। सारी दया गिरे हुए कर्मों की रीति से घुट गई और सीजर की आत्मा बदला लेने के लिए उसके साथ एटे के साथ नरक से गर्म होकर आओ। इन सीमाओं में एक सम्राट की आवाज के साथ होगा, तबाही, चिल्लाओ और युद्ध के कुत्तों को भागने दो कि इस बुरे काम की बू पृथ्वी पर भी फैलेगी। मरे हुए आदमियों के साथ दफनाने के लिए कराहते हुए एक नौकर दर्ज करें। आप ऑक्टेवियस सीजर की सेवा करते हैं, है न? पेज -40 नौकर, मैं करता हूँ, मार्क एंटनी। एंटनी, सीजर ने उसे रोम आने के लिए लिखा। नौकर, उन्हें उनके पत्र प्राप्त हुए और वे आ रहे हैं, और मुझसे मौखिक रूप से तुमसे कहने को कहा, हे सीजर, शव को देखना। एंटनी, तुम्हारा दिल बड़ा है, अलग हो जाओ और रो। जुनून, मैं देख रहा हूँ, पकड़ रहा है मेरी आंखों के लिए। दुख के उन मोतियों को तुम्हारे भीतर खड़ा देखकर पानी देने लगा। क्या तुम्हारा स्वामी आ रहा है? नौकर, वह आज रात रोम के 7 लीगों में पड़ा है। एंटनी, शीघ्रता से वापस पोस्ट करें और उसे बताएं कि क्या हुआ। यहाँ एक शोकग्रस्त रोम है, एक खतरनाक रोम है। ऑक्टेवियस के लिए अभी तक सुरक्षा का कोई रोम नहीं। नमस्ते इसलिए, और उसे ऐसा बताओ। फिर भी थोड़ी देर ठहरो, जब तक मैं ये शव न उठा लूं, तब तक तुम पीछे न हटोगे। बाजार में, वहाँ मैं कोशिश करूंगा मेरे भाषण में लोग कैसे लेते हैं इन खूनी आदमियों का क्रूर मामला, जिसके अनुसार आप प्रवचन करेंगे चीजों की स्थिति के युवा ऑक्टेवियस को। मुझे अपना हाथ उधार दो। सीजर के शरीर के साथ निर्वासन दृश्य -2 गोष्ठी। ब्रूट्स और कैसियस और नागरिकों की भीड़ दर्ज करें। नागरिक, हम संतुष्ट होंगे, आइए हम संतुष्ट रहें। ब्रूट्स, तो फिर मेरा अनुसरण करें और मुझे श्रोतागण दें। मित्रों, कैसियस, तुम दूसरी गली में चले जाओ और संख्याओं को विभाजित करें। जो लोग मुझे बोलते हुए सुनेंगे उन्हें यहीं रहने दो। जो लोग कैसियस का अनुसरण करेंगे वे उसके साथ जाएंगे, तथा सार्वजनिक कारणों का प्रतिपादन किया जाएगा। सीजर की मौत का प्रथम नागरिक, मैं ब्रूट्स को बोलते हुए सुनूंगा। दूसरा नागरिक, मैं कैसियस को सुनूंगा, और उनके कारणों की तुलना करें जब अलग अलग हम उनका अनुवाद सुनते हैं। कुछ नागरिकों के साथ कैसियस से बाहर निकलें। ब्रूट्स पल्पिट में चला जाता है। तीसरा नागरिक, महान ब्रूट्स का आरोहण हुआ है। मौन। पेज 41 ब्रूट्स, हुन आखिर तक धैर्य रखें। रोमवासियों, देशवासियों और प्रेमियों, मेरी बात सुनो, कारण करो और चुप रहो कि तुम सुनो। मेरा विश्वास करो मेरे सम्मान के लिए, और मेरे सम्मान के लिए सम्मान करो। वो तुम विश्वास कर सकते हो। अपनी बुद्धि से मेरी निंदा करो
और अपनी इंद्रियों को जागृत करो कि तुम बेहतर निर्णय कर सको। इस सभा में यदि कोई हो, कोई प्रिय मित्र सीजर का, उससे मैं कहता हूँ कि ब्रूट्स का सीजर से प्रेम है उससे कम नहीं था। यदि फिर वह मित्र मान करता है ब्रूट्स सीजर के विरुद्ध क्यों खड़ा हुआ, यह मेरा उत्तर है। ऐसा नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बल्कि ये कि मैं प्यार करता था रोम अधिक। यदि आप सीजर के बजाय जीवित होते और जीवित रहने के लिए सीजर के मरने की तुलना में सभी दास मर जाते हैं, सभी स्वतंत्र पुरुष। जैसा कि सीजर ने मुझसे प्रेम किया, मैं उसके लिए रोता हूँ क्योंकि वह भाग्यशाली था। मैं इस पर आनंदित हूँ। वह जैसे था बहादुर, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन चूंकि वह महत्वाकांक्षी था, मैं उसे मार डाला। उसकी मोहब्बत पर आंसू हैं, उसके लिए खुशी भाग्य, उनकी वीरता का सम्मान, और उसके लिए मौत महत्वाकांक्षा। यहाँ कौन है इतना आधार कि एक होगा बंद हुआ? यदि कोई हो तो बोले, क्योंकि मैंने उसे नाराज किया है। यहाँ कौन इतना असभ्य है जो रोमन नहीं होगा? अगर कोई भी, बोलो, क्योंकि मैंने उसे नाराज किया है। यहाँ कौन है तो नीच जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा? यदि कोई हो तो बोले, क्योंकि मैंने उसे नाराज किया है। मैं उत्तर के लिए रुकता हूँ। सभी कोई नहीं, ब्रूट्स कोई नहीं। ब्रूट्स, फिर मैंने किसी को नाराज नहीं किया। मैंने इससे अधिक कुछ नहीं किया है सीजर जितना तुम ब्रूट से करोगे। का प्रश्न उनकी मृत्यु कैपिटल में दर्ज है। उसकी महिमा नहीं, न तो वह योग्य था और न ही उसके अपराध लागू किया गया जिसके लिए उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। सीजर के शरीर के साथ एंटनी और अन्य को दर्ज करे यहाँ उनका पार्थिव शरीर आता है। मार्क एंटनी द्वारा शोक व्यक्त किया गया, जो हालांकि उसकी मृत्यु में उसका कोई हाथ नहीं था, फिर भी उसे प्राप्त होगा उसके मरने का लाभ। में एक जगह राष्ट्रमंडल, जैसा कि आप में से कौन नहीं करेगा। इसके साथ मैं चला गया, जैसे कि मैंने अपने सबसे अच्छे प्रेमी को मार डाला। रोम का भला हो, मेरे पास अपने लिए वही खंजर है। जब मेरे देश को मेरी मृत्यु की आवश्यकता होगी तो ये प्रसन्न होगा। सभी जियो, ब्रूट्स, जियो जियो। प्रथम नागरिक, उसे विजयी होकर उसके घर ले आओ। दूसरा नागरिक, उसे उसके पूर्वजों के साथ एक मूर्ति दें। तीसरा नागरिक, उसे सीजर बनने दो। पेज 42। चौथा नागरिक, सीजर के बेहतर हिस्से ब्रूट्स में ताज पहनाया जाएगा। प्रथम नागरिक, हम उसे उसके घर ले आएंगे चीख पुकार और कोलाहल के साथ। ब्रूट्स, मेरे देशवासियों। दूसरा नागरिक, शांति, मौन। ब्रूट्स बोलता है। प्रथम नागरिक, शांति हो। ब्रूट्स, अच्छे देशवासियों, मुझे अकेले ही जाने दो और मेरी खातिर एंटनी के साथ यहीं रहो। सीजर की लाश पर अनुग्रह करो और उसकी वाणी पर अनुग्रह करो। सीजर की महिमा की ओर प्रवृत्त होना, जो मार्क एंटनी, हमारी अनुमति से बनाने की अनुमति है। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कोई मनुष्य न हटे। एंटनी के बोलने तक मुझे ही बचा लो। बाहर निकलना। प्रथम नागरिक, रहो हो और आइए हम मार्क एंटनी को सुने। तीसरा नागरिक, उसे सार्वजनिक कुर्सी पर बैठने दो, हम उसे सुनेंगे। नोबल एंटनी, ऊपर जाओ। एंटनी, ब्रूट्स की खातिर मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। व्यासपीठ में चला जाता है। चौथा नागरिक, वह ब्रूट्स के बारे में क्या कहता है? तीसरा नागरिक, वह कहते हैं ब्रूट्स की खातिर वह स्वयं को हम सभी को निहारता हुआ पाता है। चौथा नागरिक, यदि अच्छा हो तो वह यहाँ ब्रूट्स के बारे में कोई बुराई नहीं बोलेगा। प्रथम नागरिक, ये सीजर एक अत्याचारी था। तीसरा नागरिक, नहीं, ये निश्चित है, हमारा सौभाग्य है कि रोम को उससे छुटकारा मिल गया। दूसरा नागरिक, शांति। आइए सुनते हैं एंटनी क्या कह सकते हैं। एंटनी, आप सज्जन रोमन नागरिकों, शांति हो, आइए हम उसे सुने। पेज 43। एंटनी, मित्रों, रोमनों, देशवासियों, मेरी बात सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं। मनुष्य जो बुराई करते हैं वह उनके पीछे जीवित रहती है। अच्छाई अक्सर उनकी हड्डियों में छिपी होती है, तो इसे सीजर के साथ रहने दो। कुलीन ब्रूट्स हेथ ने आपको बताया कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि ऐसा था तो यह एक गंभीर दोष था और सीजर ने दुख से इसका उत्तर दिया। यहाँ ब्रूट्स और बाकियों की छुट्टी के तहत, क्योंकि ब्रूट्स एक सम्माननीय व्यक्ति है, तो क्या वे सभी सम्माननीय पुरुष हैं?
मैं सीज़र के अंतिम संस्कार में बोलने के लिए आया हूँ। वह मेरा दोस्त था, वफादार था और मेरे प्रति सच्चा था, लेकिन ब्रूट्स का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था, और ब्रूट्स एक सम्माननीय व्यक्ति है। वह अनेक बंदियों को रोम में घर ले आया है। सामान्य खजाना किसकी फिरौती से भरा? क्या सीज़र में यह महत्वाकांक्षी लग रहा था? जब कंगालों ने रोया, तो सीज़र ने भी रोया। महत्वाकांक्षा कठोर चीजों से बनी होनी चाहिए। फिर भी ब्रूट्स का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था, और ब्रूट्स एक सम्माननीय व्यक्ति है। आप सभी ने इसे लुपकल पर देखा था। मैंने उसे 3 बार राजमुकुट भेंट किया, जिसे उन्होंने 3 बार अस्वीकार किया। क्या यह महत्वाकांक्षा थी? फिर भी ब्रूट्स का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था, और निस्संदेह वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। मैं ब्रूट्स ने जो कहा उसका खंडन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे वही बोलना है जो मैं जानता हूँ। तुम सबने उससे एक बार प्रेम किया था, अकारण नहीं। फिर कौन सा कारण तुम्हें उसके लिए विलाप करने से रोकता है? ये निर्णय, तुम क्रूर जानवरों के पास भाग गए हो, और मनुष्य अपना विवेक खो चुके हैं। धैर्य रखने के लिए अनुरोध। मेरा दिल सीज़र के साथ ताबूत में है, और मुझे तब तक रुकना चाहिए जब तक यह मेरे पास वापस न आ जाए। प्रथम नागरिक, मुझे लगता है कि उनकी बातों में बहुत सारी वजहें हैं। दूसरा नागरिक, यदि तू इस विषय पर ठीक से विचार करे, सीज़र ने बहुत गलत किया है। तीसरा नागरिक, क्या उसके पास स्वामी है? मुझे डर है कि उसकी जगह इससे भी बुरा कुछ आएगा। चौथा नागरिक, क्या आपने उसके शब्दों को चिन्हित किया है? वह ताज नहीं लेगा, इसलिए यह निश्चित है कि वह महत्वाकांक्षी नहीं था। प्रथम नागरिक, यदि ऐसा पाया जाता है, तो कुछ लोग इसका पालन करेंगे। दूसरा नागरिक, बेचारी आत्मा, उसकी आंखें रोते रोते आग की तरह लाल हो गई हैं। तीसरा नागरिक, रोम में एंटनी से बढ़कर कोई महान व्यक्ति नहीं है। पेज -44। चौथा नागरिक, अब उसे चिन्हित करें। वह फिर से बोलना शुरू करता है। एंटनी, लेकिन कल सीज़र का शब्द हो सकता है दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब वह वहीं पड़ा है, और कोई इतना दरिद्र नहीं कि उसका आदर कर सके। हे स्वामी, यदि मैं हलचल करने को तैयार होता आपके दिल और दिमाग विद्रोह और क्रोध के लिए, मुझे ब्रूट्स को गलत और कैसियस को गलत करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सम्माननीय व्यक्ति कौन है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करूंगा, बल्कि मैं चुनता हूँ मरे हुओं के साथ अन्याय करना, अपने और तुम्हारे साथ अन्याय करना। तो मैं ऐसे सम्माननीय व्यक्तियों के साथ अन्याय करूंगा। लेकिन यहाँ सीज़र की मुहर वाला एक चर्मपत्र है। मैंने इसे उसकी अलमारी में पाया। यह उसकी इच्छा है। आइए आम लोग इस वसीयत को सुने, जो मुझे क्षमा करें, मेरा पढ़ने का इरादा नहीं है। और वे जाकर मृत सीज़र के घावों को चूमेंगे और उनके रुमाल उसके पवित्र रक्त में डुबाओ। हाँ, स्मृति के लिए उससे एक बाल मांगो, और मरते हुए अपनी वसीयत में इसका उल्लेख करें। इसे एक समृद्ध विरासत के रूप में सौंपना उनके मुद्दे तक। चौथा नागरिक, हम वसीयत सुनेंगे। इसे पढ़ें। मार्क एंटनी। सभी इच्छा, हम सीज़र की वसीयत सुनेंगे। एंटनी, धैर्य रखो सज्जन मित्रों, मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। यह आपको नहीं पता कि सीज़र आपसे कितना प्यार करता था। तुम लकड़ी नहीं हो, तुम पत्थर नहीं हो, बल्कि मनुष्य हो, और मनुष्य होकर सीज़र की इच्छा पूरी करते हुए, ये तुम्हें भड़का देगा, ये तुम्हें पागल बना देगा। यह अच्छा है कि आप नहीं जानते कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि यदि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो हे, इससे क्या होगा? चौथा नागरिक, वसीयत पढ़ें। हम इसे सुनेंगे। एंटनी, तुम हमें वसीयत पढ़ोगे? सीज़र की वसीयत। एंटनी, क्या आप धैर्य रखेंगे? क्या तुम थोड़ी देर रुकोगे? आपको इसके बारे में बताने के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया है। मुझे डर है कि मैं सम्माननीय लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ, जिसके खंजर ने सीज़र को घायल कर दिया। मुझे इससे डर लगता है। चौथा नागरिक, वे गद्दार थे, सम्माननीय पुरुष। सभी इच्छा, वसीयतनामा। दूसरा नागरिक, वे खलनायक, हत्यारे थे। वसीयत पढ़ें। पेज 45। एंटोनी, तो फिर आप मुझे वसीयत पढ़ने के लिए बाध्य करेंगे। फिर शव के चारों ओर एक घेरा बना ले सीज़र, और मैं तुम्हें वह दिखाता हूँ जिसने वसीयत बनाई है। क्या मैं उतरूं, और क्या आप मुझे छुट्टी देंगे?
अनेक नागरिक, नीचे आओ। दूसरा नागरिक, उतरना। तीसरा नागरिक, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। एंटनी नीचे आते हैं। चौथा नागरिक, एक अंगूठी, गोल खड़े रहो। प्रथम नागरिक, शव वाहन से खड़े हो जाओ, शरीर से खड़े हो जाओ। दूसरा नागरिक, एंटनी के लिए कमरा, सबसे महान एंटनी। एंटनी, नहीं, इतना मत दबाओ मुझे, दूर खड़े रहो। अनेक नागरिक, पीछे हटो, कमरा, वापस सहन करो। एंटनी, यदि आपके आंसू हैं, तो उन्हें अभी से बहाने के लिए तैयार हो जाए। आप सभी इस मंत्र को जानते हैं। मुझे याद है पहली बार सीजन ने इसे पहना, एक गर्मी की शाम को, अपने तंबू में। उस दिन उसने नरवी पर विजय प्राप्त की। देखो, इस स्थान पर कैसे इसका खंजर चला। देखे कि ईर्ष्यालु कास्का ने कितना किराया कमाया। इसके माध्यम से प्रिय ब्रूट्स ने छुरा घोंपा, और जैसे ही उसने अपना शापित स्टील उखाड़ा, ध्यान दे कि सीजर के खून ने इसका अनुसरण कैसे किया, जैसे कि समाधान के लिए दरवाजे से बाहर भागना। यदि ब्रूट्स ने इतनी बेरहमी से दस्तक दी या नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रूट्स सीजर का दूत था। न्याय करो, हे देवताओं, सीजर उससे कितना प्रेम करता था। ये सभी में से सबसे निर्दयी कटौती थी, क्योंकि जब कुलीन सीजर ने उसे छुरा मारते देखा, कृतघ्नता, गद्दारों की भुजाओं से भी अधिक मजबूत, उसे काफी परास्त किया, फिर उसके शक्तिशाली हृदय को फोड़ दिया, और अपने लबादे में अपना चेहरा छिपाते हुए, यहाँ तक कि पोम्पी की प्रतिमा के आधार पर भी, जिससे पूरे समय खून बहता रहा, महान सीजर गिर गया। वाह, क्या गिरावट थी मेरे देशवासियों। तब मैं और तुम और हम सब गिर पड़े, जबकि खूनी देशद्रोह हमारे ऊपर पनप रहा था। हे, अब तुम रो, और मैं समझता हूँ आप महसूस करते हैं दया का भाव। ये दयालु बूंदें हैं, दयालु आत्माएं। जब आप देखते हैं तो आप रोते हैं। हमारे सीजर का पहनावा घायल हो गया। तुम्हें यहाँ देखो, यहाँ वह स्वयं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गद्दारों के साथ विवाह कर रहा है। पेज 46। प्रथम नागरिक, हे दयनीय दृष्टि। दूसरा नागरिक, हे कुलीन सीजर। तीसरा नागरिक, हे मनहूस दिन। चौथा नागरिक, हे गद्दारों, खलनायकों। प्रथम नागरिक, हे अत्यंत रक्तरंजित दृश्य। दूसरा नागरिक, हमसे बदला लिया जाएगा। सभी बदला के बारे में तलाश, जलाना, आग, मारना, मार डालो, किसी गद्दार को जिंदा मत रहने दो। एंटनी, ठहरो देशवासियों। प्रथम नागरिक, वहाँ शांति। नेक एंटनी को सुने। दूसरा नागरिक, हम उसे सुनेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे, हम उसके साथ मरेंगे। एंटनी, अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा विद्रोह की ऐसी अचानक बाढ़ के लिए। जिन्होंने ये कार्य किया है वे सम्माननीय हैं। अफसोस, मुझे नहीं मालूम उनके कितने निजी दुख हैं, इसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वे बुद्धिमान और सम्माननीय हैं, और निस्संदेह कारण सहित तुम्हें उत्तर देगा। मित्रों, मैं आपका दिल चुराने नहीं आया हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, जैसा ब्रूट्स है, लेकिन जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। वो प्यार मेरे दोस्त, और यह वे भली भांति जानते हैं। इससे मुझे उनके बारे में बोलने की सार्वजनिक छूट मिल गई, क्योंकि मेरे पास न तो बुद्धि है, न शब्द, न मूल्य, न क्रिया, न कथन, न वाणी की शक्ति मनुष्यों के खून को उत्तेजित करने के लिए। मैं केवल सही पर बोलता हूँ। मैं तुमसे वह कहता हूँ जो तुम आप ही जानते हो। दिखाओ तुम्हें मीठे सीजर के घाव, बेचारे बेचारे गूंगे मुंह, और उन्हें मेरे लिए बोलने को कहा। लेकिन क्या मैं ब्रूट्स था, और ब्रूट्स एंटनी, एक एंटनी थे। आपके हौसले पस्त कर देंगे और जीभ लगा देंगे सीजर के हर घाव में जो हिलना चाहिए, रोम के पत्थरों का उठना और विद्रोह होना। सभी हम विद्रोह करेंगे। प्रथम नागरिक, हम ब्रूट्स का घर जला देंगे। तीसरा नागरिक, फिर दूर आओ, षड्यंत्रकारियों की तलाश करो। पेज 47। एंटनी, फिर भी मेरी बात सुनो देशवासियों, फिर भी मुझे बोलते हुए सुनो। सभी शांति हो, एंटनी को सुनो, सबसे महान एंटनी। एंटनी, क्यों दोस्तों, आप न जाने क्या करने जा रहे हैं, जिसमें हाथ सीजर इस प्रकार आपके प्यार का हकदार था। अफसोस, आप नहीं जानते। फिर मुझे आपको बताना होगा। तुम वह वसीयत भूल गए हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सभी सबसे सच्चा इच्छा। आइए ठहरे और वसीयत सुने।
एंटनी, यह वसीयत है और सीजर की मुहर के तहत प्रत्येक रोमन नागरिक को वह देता है, हर एक आदमी को 75 द्राख्मा। दूसरा नागरिक, सबसे महान सीजर, हम उसकी मौत का बदला लेंगे। तीसरा नागरिक, हे शाही सीजर। एंटनी, धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो, सभी शांति हो। एंटनी, इसके अलावा उसने तुम्हें अपनी सारी यात्राएं छोड़ दी हैं, उनके निजी कुंज और नए लगाए गए बगीचे, इस तरफ तिब्र उसने तुम्हें छोड़ दिया है, और तुम्हारे उत्तराधिकारियों को सर्वदा के लिए सामान्य सुख, विदेश घूमने के लिए और अपने आप को फिर से बनाने के लिए। यहाँ एक था सीजर, ऐसा दूसरा कब आता है? प्रथम नागरिक, कभी नहीं, कभी नहीं। आओ, दूर दूर, हम उसके शरीर को पवित्र स्थान पर जला देंगे और ब्रांड से गद्दारों के घरों में आग लगा देते हैं। शरीर उठाओ। दूसरा नागरिक, जाओ आग ले आओ। तीसरा नागरिक, बेंचों को गिराओ। चौथा नागरिक, फॉर्म, खिड़कियां, किसी भी चीज को गिरा दो। नागरिकों को शरीर से बाहर निकालें। एंटनी, अब इसे काम करने दो। शरारत, तुम चल रहे हो, तुम जो मार्ग चाहो ले लो। एक नौकर दर्ज करे। अब कैसे? साथी नौकर, सर ऑक्टेवियस पहले ही रोम आ चुका है। एंटनी, कहाँ है वह? पेज 48। नौकर, वह और लेपित सीजर के घर पर हैं। एंटनी, और वहां मैं सीधे उनसे मिलने जाऊंगा, उसकी एक इच्छा पूरी होती है। भाग्य प्रसन्न है और इसी मूड में हमें कुछ भी दे देंगे। नौकर, मैंने उसे कहते सुना, ब्रूट्स और कैसियस रोम के द्वारों से पागलों की तरह छुटकारा पा लिया गया है। एंटोनी, मानो उन्हें लोगों की कुछ सूचना थी, मैंने उन्हें कैसे स्थानांतरित किया था। मुझे ऑक्टेवियस के पास ले आओ। कार्यकारी दृश्य -3 एक सड़क। सिन्ना दर्ज करे। कवि सिन्ना कवि, मैंने आज रात स्वप्न देखा कि मैं सीजर के साथ दावत कर रहा हूँ और अशुभ चीजें मेरी कल्पना पर प्रभाव डालती हैं। मुझे दरवाजों से बाहर भटकने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी कुछ मुझे आगे ले जाता है। नागरिक दर्ज करे। प्रथम नागरिक, आपका क्या नाम है? दूसरा नागरिक, तुम कहाँ जा रहे हो? तीसरा नागरिक, आप कहाँ रहते हैं? चौथा नागरिक, क्या आप शादीशुदा आदमी हैं या कुंवारे? दूसरा नागरिक, हर आदमी को सीधे जवाब दो। प्रथम नागरिक, आए और संक्षेप में। चौथा नागरिक, आए और बुद्धिमानी से। तीसरा नागरिक, आए और सचमुच आप सर्वश्रेष्ठ थे। सिन्ना कवि, मेरा नाम क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ बसना? क्या मैं शादीशुदा आदमी हूँ या कुंवारा? फिर तो प्रत्येक व्यक्ति को सीधे और संक्षेप में बुद्धिमानी से उत्तर दे। सचमुच बुद्धिमानी से मैं कहता हूँ, मैं कुंवारा हूँ। दूसरा नागरिक, इतना ही कहना है। वे मूर्ख हैं जो शादी करते हैं। मुझे डर है कि इसके लिए तुम मुझे कड़ी फटकार झेलोगे। आगे बढ़ना। सीधे। सिन्ना कवि, सीधे, मैं सीजर के अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ। पेज 49। प्रथम नागरिक, मित्र के रूप में या शत्रु के रूप में? सिन्ना कवि, एक दोस्त के रूप में। दूसरा नागरिक, उस बात का सीधा उत्तर दिया जाता है। चौथा नागरिक, आपके आवास के लिए, संक्षेप में। सिन्ना कवि, संक्षेप में, मैं कैपिटल के पास रहता हूँ। तीसरा नागरिक, आपका नाम? सर, सचमुच। सिन्ना कवि, सचमुच मेरा नाम सिन्ना है। प्रथम नागरिक, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, वह एक साजिश करता है। सिन्ना कवि, मैं सिन्ना कवि हूँ, मैं सिन्ना कवि हूँ। चौथा नागरिक, उसे उसके बुरे छंदों के लिए फाड़ दो, उसके बुरे छंदों के लिए उसे फाड़ दो। सिन्ना कवि, मैं सिन्ना साजिश करता नहीं हूँ। चौथा नागरिक, कोई बात नहीं, उसका नाम सिन्ना है, तोड़ो लेकिन उसका उसके हृदय से नाम निकालो और उसे जाने दो। तीसरा नागरिक, उसे फाड़ दो, उसे फाड़ दो। आओ, ब्रांड हो, अग्नि ब्रांड, ब्रूट्स को, कैसियस को, सभी को जला दो। कुछ को डैसियस को घर और कुछ कैस्का के लिए, कुछ लिगारियस के लिए। चले जाओ, जाओ। कार्यकारी इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।